So good morning. Today we will cover the chapter number 1 of your history, that is what, where, how and when. So firstly we will cover what and where. Right? This is your chapter, what, where, how and when. Right? And we will cover what and where first. Okay? What? Now the question arises, what do we study in history? What do we study in history? So that is the very important question कि हम लोग इतने सालों से हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अरे हम पढ़ते क्या हैं? The basic thing is that in history we study about the past. Studied about the past means what the early man or the early humans they ate. क्या खाते थे वो? Right? Then what they wore. Right? What they wore. And what they wore. वो पहनते क्या थे? Right? And even the kind of houses they lived in. And the kind of houses they lived in. And what else they did? और वो करते क्या थे? Were they hunters? Were they herders? Were they farmers? Were they rulers or the merchants or the priest or the craft person or the artists or the musicians or the scientists? What they were? So ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री में. Right? How the people used to live. We also find out the games children played, the stories they heard, the plays they saw, and even the songs they sang. So everything about the people, everything about the early man or the people who lived in the past. So everything we study in the history. Right? Now, the question arises, where did the people live? हमने ये तो पढ़ना है कि ये क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे ये अपने आप को एंटरटेन करते थे, right? So these were the things which were rather there. But now the question arises, where did the people live? रहते कहाँ थे वो? Right? So this we will discuss. कहाँ रहते थे वो? They lived near the river valleys. Right? उसका रीजन क्या था? वो रिवर वैलीज के पास रहते थे, रिवर्स के पास रहते थे. The reason was that it provided water for all purposes. जो रिवर्स होती थी वो इन्हें प्रोवाइड करती थी water for all the purposes, be it for drinking, be it for their daily use, be it for farming. Right? So even for farming also, these rivers provided them the water. And the people who lived here, they were very skilled. They were very skilled gatherers. Right? एक तो रहते थे वो near river valleys. Right? Then was near Suleiman and Kirtar Hills. ये Suleiman Hills और Kirtar Hills कहाँ है? That I will show you in the map in the coming slides. Right. So ये जो areas थे, which was the Suleiman and Kirtar Hills, यहाँ पर the traces of life has been found. The location of these hills is there in the northwest,
And as mentioned, the traces of life has been found in this area. And these are the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley. ये वो एरियाज हैं जहां पर men and women जो थे they had started growing the crops which is wheat and barley. ये जो Sulayman Hills हैं, this is there in the northwest, and the other areas where the people lived, that is the Indus, Ganga and their tributaries. Indus, you also know, it originates from Tibet, enters India from Jammu and Kashmir, and then it moves to Pakistan. Whereas Ganga, it starts from the Gangotri, which is there in Uttarakhand, and then it enters the plain area from Haridwar. Right, in Haridwar it enters the plain area, and then it covers the areas of the Uttar Pradesh, then Bihar, then West Bengal, and in West Bengal it is distributed, and then ultimately it falls in the Bay of Bengal. So ये सारे जो areas थे यहाँ पर भी लोग जो थे रहते थे, and some of the earliest cities they also flourished on the bank of these rivers. जैसे पहले बताया कि लोग जो थे पहले प्रेफर करते थे कि रिवर्स के आसपास ही रहें. Reason was that they got the water. So ये इस water के कारण है, because water is always a lifeline for the people. So the people they prefer to settle near the river valleys, और उसके कारण ही जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग settle होना शुरू हो गए तो the cities flourished. The cities came into existence. And when these cities started getting into the existence, when these cities flourished, it led to the rise of kingdoms. It led to the rise of kingdoms. बहुत बड़े बड़े उस समय राजा महाराजा होते थे, वो जो थे यहाँ पर वो they had started setting up their kingdoms. अब ये जो गंगा रिवर है, ये जहाँ से फ्लो करती है, उसके साउथ में one very powerful kingdom was there, that was the Magad. मगध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक उस समय का स्टेट रहा है. इट वॉज अ वेरी लार्ज किंगडम, और इट हैज प्रोड्यूस्ड मेनी ऑफ द फेमस रूलर्स ऑल्सो. राइट, बहुत टाइम बाद यहाँ पर आपने अशोका का नाम भी सुना हुआ है. सो उसका भी जो आई मीन ही ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर एरिया. सो ये एरियाज थे जहां पर द पीपल लिव्ड. अब मैं यहाँ पर आपको ये बता दूंगी कि ये हिल्स कहां पर हैं. यू कैन इजीली सी द खेतर हिल्स विच इज देयर एट एक्सट्रीम लेफ्ट. उसको मैंने टिक भी किया हुआ है. राइट, एकदम लेफ्ट में आप जाके देखिए. फाइन, खेतर हिल्स, और उसके साथ ही है सुलेमान हिल्स, जिसके ऊपर भी मैंने टिक मार्क लगाया है. इनके ऊपर ना व्हाट आई हैव डन, आई हैव टिक मार्क्ड इट सो दैट कि आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा उसको देखना. राइट, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर है नर्मदा रिवर, बिकॉज नर्मदा रिवर का भी रेफरेंस आता है कि नर्मदा रिवर के आसपास भी जो लोग थे वो रहते थे. राइट, यहाँ पे भी नर्मदा रिवर यू कैन सी, मैंने ब्रैकेट में डाला हुआ है, इसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है. एंड गंगा रिवर यू कैन सी, जहाँ हिमालयस लिखा उसके नीचे गंगा रिवर ऑल्सो यू कैन सी. सो ये सारे एरियाज मैंने आपके थोड़े से मार्क कर दिए थे, हाईलाइट कर दिए थे, सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड लोकेट. देन वन यू कैन सी इन द एरिया ऑफ बिहार, मगध, दैट हैज बीन रिटन बाय मी, हैंड रिटन है वो. मगध ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट उस समय एक किंगडम था जिसने कि यू कैन से ऑलमोस्ट एंटायर ऑफ नॉर्थ इंडिया जो था वो कवर कर रखा था. Right, now the question comes whether the people moved from place to place or they just stayed at one place. क्या वो एक ही जगह पे रहते थे? No, we have already done in the other chapter that the people they used to travel from place to place, and
For what reasons? There were different reasons for them to travel. One was in search of livelihood. राइट इवन आज भी हम लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हो सकता है आपके पेरेंट्स जो हैं वो भी बिलोंग करते होंगे किसी और एरिया को, बट बिकॉज ऑफ देयर जॉब्स एंड बिकॉज ऑफ देयर वर्किंग दे मस्ट हैव शिफ्टेड टू दिस प्लेस. सो इट इज ऑलवेज देयर दैट इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड द पीपल हैड moving, had been moving. This is always a very major reason for the people to move. And इन द प्रीवियस टाइम, पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में एक और रीजन क्या होता था? कंकरिंग अदर्स लैंड्स. आजकल ये रीजन हमारे पास एज सच नहीं है. Earlier time, what the kings used to do, they used to attack on the other kingdoms, and they used to merge those other one kingdoms in their own kingdoms, and they used to extend their own territories. अपना एरिया बढ़ाते होते थे, दूसरे के ऊपर अटैक किया और अपना एरिया बढ़ा लिया, उसको जीत लिया और अपने में मिला लिया. सो उसके लिए भी दे यूज्ड टू मूव, वो जाते थे दूसरी जगह पर. देन इज स्पिरिट ऑफ एडवेंचर. स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, न्यू एरियाज ढूंढने हैं, एक एडवेंचर पे जाना है, दैट इज ऑल्सो द रीजन. हम भी जाते हैं आजकल तो वी पीपल जस्ट ट्राई टू मूव आउट सम अदर प्लेसेस फॉर एंटरटेनमेंट. एक एडवेंचर के लिए तो हम लोग कितना ज्यादा आजकल जाते हैं, बड़ी कॉमन सी चीज हो गई. अब पहले भी ये होता था कि द पीपल व्हेन दे गॉट फेड अप ऑफ स्टेइंग एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग, दे यूज्ड टू मूव, दे यूज्ड टू ट्रैवल. Right? Then escape from natural disasters. But obvious कि if a place was more prone for the natural disasters, then these people used to move away from those areas which were more prone to natural disasters. Suppose कोई एक एरिया है जहां पर बहुत ज्यादा earthquakes आते हैं, या ड्रॉट बहुत ज्यादा हो जाता है, या फ्लड्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो लोग वहां रहना क्यों पसंद करेंगे? राइट? कि हर बार नेचर ऐसा करता है, नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, हर बार उनको दोबारा अपने आप को रिहेबिलिटेट करना पड़ता है, रीसेटल करना पड़ता है, तो व्हाई दे विल बी इंटरेस्टेड इन लिविंग इन दोज एरियाज? राइट? सो दे प्रेफर टू एस्केप, वहां से चले जाना पसंद करते रहे हैं जहां पर नेचुरल डिजास्टर्स ज्यादा आते हैं. ट्रेड एंड रिलीजियस टीचिंग्स. बिजनेस करना है भाई, सो उसके लिए भी अगर कहीं एक जगह से सामान सस्ते में खरीद लिया, दूसरी जगह पर जाकर सामान जो है वो महंगे रेट पे बेच दिया. ट्रेड क्या होता है? वेयर अ पर्सन बाइज अ प्रोडक्ट एट अ लेस रेट फ्रॉम अ प्लेस एंड सेल्स इट एट अ हायर रेट एट द अदर प्लेस एंड गेन्स अ प्रॉफिट. दिस इज द ट्रेड. ट्रेडर्स जो होते हैं प्रोड्यूसर्स नहीं होते हैं, कोई सामान एक जगह से खरीदते हैं और दूसरी जगह पर बेच देते हैं. तो ट्रेड पर्पस से भी द पीपल यूज्ड टू ट्रैवल. दे यूज्ड टू बाय अ प्रोडक्ट एट वन प्लेस एट चीपर रेट, एंड देन दे यूज्ड टू ट्रैवल टू सम अदर प्लेस वेयर दे कुड सेल देयर प्रोडक्ट एट अ हायर रेट एंड मेक प्रॉफिट. देन केम द रिलीजियस टीचिंग्स. रिलीजियस टीचिंग्स, जब हमारी कंट्री में नए नए रिलीजन्स आने शुरू हुए, जिसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, राइट? ये ऐसे रिलीजन से, तो ये ओरिजिनेट इंडिया में ही हुए, राइट? सो द फॉलोअर्स ऑफ दीज रिलीजन्स, दे वांटेड टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ देयर टीचर. इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ भगवान बुद्ध, राइट? भगवान बुद्ध की अगर बात करें तो उनके जो फॉलोअर्स थे वो इंडिया में भी थे, चाइना में भी थे, एट मेनी प्लेसेस द फॉलोअर्स वर देयर. सो वो फॉलोअर्स क्या करते थे कि दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्प्रेडिंग द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध. चाइना से भी लोग इंडिया में आते थे टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध, हाउ ही लिव्ड, वेयर ही लिव्ड. सो ये चीजें जो थी, इनके कारण भी जो लोग थे, दे यूज्ड टू ट्रैवल, राइट? सो एम्पल ऑफ रीजन वर देयर. Now the names of the lands. We are very aware कि इंडिया के कितने सारे नाम हैं. We have two more names, that is the India and भारत.
राइट। इसका नाम इंडिया भी शायद इसलिए पड़ा बिकॉज इट वाज देयर, I mean the traders who used to come to India, they called it a सिंधु। जो रिवर इंडस है ना, ये इंग्लिश में हम ऐसे इंडस बोलते हैं, हिंदी में से हम सिंधु रिवर बोलते हैं। ये वर्ड जो सिंधु आया है, ये वर्ड आया है संस्कृत से, राइट। तो सिंधु से ये वर्ड जो था, ये आई मीन दैट वाज देयर इन द इंडस, फिर इंडस से इंडिया एंड सो ऑन। तो उस समय जो इरानियंस या ग्रीक्स जब इंडिया में आए, तो वो इंडस रिवर जो था उससे बहुत फैमिलियर थे। इंडस रिवर जो था दैट हैज प्रोवाइडेड देम अ वेरी गुड रूट। तो ये इंडस रिवर से बड़े फैमिलियर थे। सो दे कॉल्ड इंडिया, उन्होंने इंडिया को क्या बोला, हिंदोस और इंडोस। इंडस रिवर नाम था, इंडस से इंडोस बना या हिंदोस। उसके बाद धीरे धीरे जो नेम से इनके इनकी जो प्रोनाउंसिएशन थी वो चेंज होती चलेगी। इसको ये इंडोस क्यों बोलते थे, बिकॉज दे बिलीव कि ये वो एरिया है जो इंडस रिवर के ईस्ट में है, इंडस रिवर के ईस्ट में है। सो इट वाज नोन एज द इंडोस, राइट। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ये नेम भारत जो था वो भी एक काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गया, राइट। नेम भारत वाज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल who lived in the northwest and they were also mentioned in the ऋग्वेद। ऋग्वेद से ही जो भारत नाम है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। सो हमारी कंट्री के अभी कितने सारे नाम ऐसे हैं जो पॉपुलर है, राइट। सो इनसे ही थोड़ा चेंज होके मॉडिफाई होकर हमारी जो कंट्री का नाम था दैट बिकेम इंडिया। So I'll repeat, the Bharat, it was used for the group of people who lived in northwest, जिनका reference ऋग्वेद में भी आता है। और ऋग्वेद जो है that is the earliest composition in Sanskrit। हिंदू रिलीजन की सबसे पुरानी ये बुक है that is there in Sanskrit। So in tomorrow's class we will cover the topic how and when। आज हमने कवर किया what and where, tomorrow we will cover how and when। I mean it's all about the history।